So now you are into neurochemistry. I'm sure you have gone through it and you have found it interesting. We have started from the very basic. And the basic was understanding what happens at the synaptic cleft, what happens within the axon, and how the synaptic vesicles then fuse to spill out the contents into the synaptic area, and these little molecules run across. And I did tell you, if you recall, just to recap, that there were several steps from the manufacturing, the packing, the movement of vesicles, right up to the point where they move to the presynaptic area, then spill over, release into the synaptic cleft, cross over into the postsynaptic area and cause. There are about 7 different steps. And 7 different possible actions can take place. Now, we did start talking about what were the various neurochemicals, and I told you there are certain very clear classification of neurochemicals. The monoamines, the single amine group is very clearly defined, and it has been almost the last 40 some years that they have been found, and we have been working on them, which is quite a long time considering, but still not very old, it's recent. Then we have within the monoamines, they are the catecholamines and they are the indolamines, the 2 classifications. And then there was this acetylcholine, which is an independent neurotransmitter which works for the neuromuscular junctions. We also then talked about the putative neurotransmitters. The putative neurotransmitters are possible candidates for neurotransmission, and these neurotransmitters still have to qualify. There were different conditions which the neurotransmitter molecules and the neurotransmitter systems have to qualify before they can become a neurotransmitter or can be classified as a neurotransmitter. So ये आपको मालूम है, जिस तरह आप इम्तिहान देते हैं और एक डिग्री मिल जाती है, इसी तरह से न्यूरोट्रांसमीटर्स को भी वो क्वालिफिकेशंस पूरी करने की जरूरत है बिफोर दे कैन बी गिवन दिस ग्रैंड क्लासिफिकेशन ऑफ बीइंग अ न्यूरोट्रांसमीटर. तो प्यूटेटिव न्यूरोट्रांसमीटर्स की भी हमने आपको लिस्ट दी थी, उसमें न्यूरोपेप्टाइड्स भी हैं, अमाइनो एसिड्स भी हैं, फिर उसमें हार्मोन्स भी हैं विच कैन एक्ट एज मॉड्यूलेटर्स बट पॉसिबल कैंडिडेट्स फॉर न्यूरोट्रांसमिशन. इन सब के बाद if you look at your handouts and your charts, you will see that we will move on into the major neurotransmitters. The major neurotransmitters, the monoamines, dopamine, norepinephrine, epinephrine, serotonin. And of course, histamine is coming up. We won't talk about it, but we will just get a little familiar with the name. Now let's go into dopamine. थोड़ा सा हमने इस पर बात करनी शुरू की थी और हमने आपको ये बताया था कि dopamine जो है is a neurotransmitter which is the last to be discovered in the chain of norepinephrine, epinephrine and dopamine came first, but it was the last one to be discovered. Last to be given the status of a neurotransmitter, because earlier it was thought to be just part of the synthesis chain of neurotransmitters, which is main classification was that norepinephrine was important. And this was found to be synthesized from tyrosine and identified by Judenfreund in a Swedish laboratory in 1964. Now we also talked about the 3 major pathways of dopamine: the nigrostriatal, the mesolimbic and the tuberoinfundibular. And you do recall my favorite neurotransmitter is this, and of course you do recall that my favorite neurotransmitter system within dopamine was nigrostriatal, and I did give you my reasons for that, having worked in this area for about 5 years. The nigrostriatal dopaminergic system starts from substantia nigra, obviously, and ends in the striatum. That's why the name nigrostriatal. Very important, 80% of the brain's dopamine is found here. And if dopamine is depleted from the nigrostriatal dopaminergic system, we have symptoms of Parkinson's, and if there are increases, there are symptoms of schizophrenia.
But schizophrenia being a complex symptom or a syndrome, we do have the other dopaminergic system, which is the mesolimbic. Mesolimbic, as the name implies, middle of the midline of the brain, and then it moves to the limbic system. And the limbic system is where the lack of affect and apathy and other symptoms of schizophrenia can be located. So this system itself is responsible for. Then the third one we talked about was tuberoinfundibular, which is a direct connection of the dopaminergic pathway to the very important pituitary, which is part of the hypothalamic pituitary connection. So the hypothalamic hypophyseal connection, which is where dopamine then controls and modulates certain hormonal states and certain emotional states as well. So special regions of hypothalamus, arcuate nucleus of hypothalamus to be precise, is where it originates from and ends in the hypophyseal, which is the pituitary. Now the synthesis pathway is very important. So what I'm going to do for each neurotransmitter is take you through the neurotransmitter itself, when it was discovered and what was its characteristics. Then I will take you to the neuroanatomical locations. Then I will take you through the synthesis pathway. Then I will take you to the drugs that interact with the synthesis pathway. And lastly, I will go into the behaviors which each one of these specifically, there is strong evidence. There are many behaviors, but we will select a few for each neurotransmitter so that you understand how important this neurotransmitter is. So for dopamine, we have done the neuroanatomical location, we have done the pathways, we were also done the discovery of this neurotransmitter. And then now let's move into the third aspect, which is the synthesis pathway. How is it synthesized? Synthesized means how is it manufactured, or how is it created within through chemicals and biochemical reactions within the brain and within those receptors and within those cell somas. You must recall here that we have very clearly spelled out that the brain will not, cannot, and does not have the capacity to absorb and take neurochemicals or similar compounds from the body. There are compounds which are very similar to dopamine, the adrenaline, noradrenaline, which is found outside in the adrenal gland and manufactured by the adrenal medulla. But the brain does not accept that. In the similar manner, all the rest of the neurotransmitters are manufactured within the cell somas in some cases and within the axon in some other cases. But beyond that, it is not manufactured anywhere or accepted from anywhere. So, considering dopamine, in the cell soma, the manufacturing takes place. Where does it begin? It begins from phenylalanine. You have heard this name before, and I told you that this was taken in and absorbed from the food into the bloodstream, and from the bloodstream it is then circulated and absorbed by these neurons, and in some cases brain does allow these compounds to move in because it needs them. And this is immediately, phenylalanine is immediately hydroxylated by phenylalanine hydroxylase. And I did tell you that in order to make life easy for you, scientists have devised these terms. The action is hydroxylation. Adding a hydroxyl group to the molecule is that enzymatic action, and to what it is happening? To phenylalanine. So phenylalanine is hydroxylated by phenylalanine hydroxylase. Simple, if you write it down, seems very easy because it is very logical. Then tyrosine is formed from this reaction. Tyrosine पहला सब्सटेंस है, प्रीकर्सर, जो कि अब हमें डोपामिन की तरफ लेके जाएगा. तो टायरोसिन
is then again hydroxylated, which means इस टायरोसिन के मॉलिक्यूल को भी एक हाइड्रोक्सिल मॉलिक्यूल अटैच होता है। और कौन करता है इसको अटैच करवाता है? एक एंजाइमेटिक एक्शन, उस एंजाइम का नाम है टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज। है ना भाई, आसान हो गया ना। तो फेनल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज होके टायरोसिन बना, टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज होके क्या बना? डोपा। डोपा then becomes immediately dopamine. How? It is decarboxylated by a substance which is known as dopa decarboxylase. Decarboxylase का मतलब हुआ कि उसमें से जो कार्बोक्सिल ग्रुप है that is removed. D का मतलब removing, carboxylate, the carboxyl group has been removed. So dopa, when it is decarboxylated, becomes dopamine. Simple steps. Now dopamine, it then moves through the neurotransmitter systems that are for specialized for dopamine. But then when it is moving from this particular substance and this particular pathway, this particular receptor, there are many agents which are willing to eat it up and destroy it. नेचर ने इंतजाम रखा हुआ है, मैंने पहले आपको कहा, टू बैलेंस। अब बैलेंस करने के लिए इट इज देन मेटाबोलाइज्ड और ब्रोकन डाउन इनटू इनइफेक्टिव कंपाउंड्स, एंड इसमें से एक है मोनोएमीन ऑक्सीडेज। मोनोएमीन ऑक्सीडेज क्या? सिंगल एमीन वाले ग्रुप को ऑक्सीडाइज कर देता है, ऑक्सीडाइज करके डोपामिन की एक्शन खत्म कर देता है। सो मोनोएमीन ऑक्सीडेज कन्वर्ट्स मोनोएमीन्स टू एल्डिहाइड्स, इनइफेक्टिव बनाने के लिए एल्डिहाइड्स करके जिस्म में से एक्सक्रीट कर देता है, सिस्टम से बाहर निकाल देता है। दूसरा जो है वो है कॉम्ट, COMT, लेकिन जरा इसका मुश्किल नाम है, मुश्किल इस तरह से इसको कहते हैं कैटकोल ओ मेथाइल ट्रांसफरेज। इससे हमें आसानी हो जाती है समझने में कि क्या करता है, कॉम्ट क्या करता है। कैटेकोलामीन्स को methyl transferase, which means it transfers the methyl molecule out of catecholamine और इसको फिर इनइफेक्टिव बनाते हैं। तो दो तरीके हैं जिससे डोपामिन के मॉलिक्यूल को खतरा है और वो उनको ढूंढ रहे होते हैं, सिनेप्टिक लेफ्ट में भी और प्री सिनेप्टिक एरिया में भी वो ढूंढ रहे होते हैं, और जहां जहां इनको फ्री मॉलिक्यूल्स मिलते हैं डोपामिन को, उनको ये खाते जाते हैं और एमिनेट करके और मेथाइल ग्रुप निकाल के कॉम्ट इनको बाहर निकाल देते हैं। So then whatever substances we find, we call them metabolites of dopamine. है ना, समझ में आती बात। So these metabolites of dopamine is also one way of assessing। अगर बहुत ज्यादा डोपामिन बन रही है और बहुत ज्यादा वो डिस्ट्रॉय होके मेटाबोलाइट बन के बाहर निकल रही है, तो हमें अंदाजा हो जाता है कि डोपामिन इस्तेमाल ज्यादा हो रही है ना। तो ये एक this is one way of assessing whether dopamine is being manufactured in excess of normal use. Now let's come to what the pharmacological agents that work on dopamine. अगर आपको याद होगा, मैंने आपको पाथवे दिखाया था, आपको नजर आएगा आपकी किताब में भी ये तस्वीरें हैं, और इस तस्वीर को आप as I tell my students, इसको घोट के पी जाओ। This is one of my favorite pictures. And जितने न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो इस पिक्चर के साथ आपको दिखाए जाएंगे और इस पिक्चर में वो फिट किए जाएंगे। There are 8 steps here, starting from the first one, from the precursor, right up to the synaptic cleft and beyond. ये जब आप दिखाएंगे और देखते हैं, ये इसमें जितनी दफा आप जो भी पढ़ेंगे न्यूरोट्रांसमीटर, हर न्यूरोट्रांसमीटर का यही पाथवे है, हर न्यूरोट्रांसमीटर के साथ यही हम सामने रखेंगे और इस पे हम बात करेंगे। Now let's talk about what can happen here. What can happen is that this pathway that we see, इसमें प्रीकर्सर बनता है। प्रीकर्सर बनने के साथ साथ वो न्यूरोट्रांसमीटर पैकेज होता है
और पैकेज होने के साथ साथ वो ट्रांसफर होता है, और ट्रांसफर होने के साथ साथ मूव करता है टू प्री सिनेप्टिक एरिया, और वहां पर ये गेटवे से रिलीज होता है एक्सोसाइटोसिस के प्रोसेस से। वहां से रिलीज होने के बाद इसको देखिए, ये सिनेप्टिक एरिया क्रॉस करता है, और क्रॉस करने के बाद यहाँ पर है कॉम्प्ट और यहाँ पर है माओ। साथ कॉम्प्ट और माओ दोनों जगह फिर रहे हैं। माओ यहाँ पर ज्यादातर है, कॉम्प्ट दोनों जगह पे पाया जाता है। अब यहाँ पर एक्शन जो भी होगा, मॉलिक्यूल्स यहाँ से दौड़ के दूसरी तरफ जाएंगे और ये क्रॉस करके दूसरी तरफ एक्सेप्ट होंगे कि नहीं होंगे। These are the sites, the postsynaptic sites. So this figure is something that you might also get on your exam for a given neurotransmitter. तो इसको याद रखिएगा और इसको सामने रख लें ब्लैंक को, और मैं इस ब्लैंक के साथ आपके साथ बात करती जाती हूँ, आप इसको फिल करते जाएं and we go over it again and again. दो बातें याद रखने की हैं before we go on to the lecture. एक बात याद रखने की है कि कुछ ड्रग्स एगोनिस्टिक्स हैं which will help the neurotransmitter cross and then they enhance the effect of the neurotransmitter. तो ये कुछ positives हैं, pluses हैं, friends हैं who help the neurotransmitter enhance its activity. जहाँ दोस्त हैं वहाँ दुश्मन भी होते हैं, right? So there are some antagonists and these antagonists then block the activity of the neurotransmitter. और कहीं भी ब्लॉक हो सकता है, यहाँ पर भी, बीच में भी. So let's talk about what can happen. Agonists are drugs that mimic the action of or have an excitatory effect on the neurotransmitter. So that drug becomes an agonist. Antagonists are those drugs or those substances which block, inhibit or in any way oppose the action of the neurotransmitter. ड्रग्स क्या हैं जिनकी हम बात करने जा रहे हैं? These are pharmacological substances. Pharmacological substances of a very special kind. These are pharmacological substances which have an effect on the neurotransmitters. These are psychoactive substances, which means they only have an effect within the brain and within the neurotransmitter systems, and thereby resulting in a behavioral change. So we are only interested in these drugs, and we're going to be talking about the psychoactive drugs or psychoactive pharmaceutical substances which act directly onto the neurotransmitter system. तो हम ये बात करते हैं, इसमें तीन तरीके से ये बात कर सकते हैं, या तीन तरीके से इसको इंटरफेयर कर सकते हैं ये ड्रग्स ऑन द न्यूरोट्रांसमीटर. First of all, they can act directly on the nerve cell or the soma. So this is one way, direct action on the cell soma. दूसरा, can act on the presynaptic area or the postsynaptic area. तो पहले तो सेल सोमा को अटैक किया, लेकिन दूसरा एक्शन है सेल सोमा के अलावा प्रीसिनेप्टिक एंड पोस्टसिनेप्टिक दोनों जोन्स पे असर करना. तीसरा एक्शन जो है वो डायरेक्ट नहीं है, लेकिन न्यूरोट्रांसमीटर को असरअंदाज होता है, और वो है जो न्यूरोट्रांसमीटर के इनएक्टिवेटिंग एंजाइम्स हैं, डीएक्टिवेटिंग एंजाइम्स हैं, जो इसको ब्रेक डाउन करते हैं, उनको इनडायरेक्टली उन पे एक्ट करना, ताकि न्यूरोट्रांसमीटर के असरात हमें नजर आए. तो पहला सेल सोमा पे एक्ट होना, दूसरा प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक रिसेप्टर पे एक्ट करना, और तीसरा ये कि इनडायरेक्ट एक्शन ऑन द सब्सटेंसेस व्हिच आर इनएक्टिवेटिंग द न्यूरोट्रांसमीटर. Having said that, let's move into dopamine and see what we have here. Dopamine का पहला स्टेप जो है, that is the precursor. Precursor which is transportation pathway within the axon, और इसमें आपको याद होगा हमने PKU की बात की थी. वो क्या है PKU? याद आ गया? बहुत many moons ago we talked about PKU. Look up your notes. Go back. PKU, phenylketonuria, a disorder which at birth starts destroying, degenerating the brain because of toxic buildup. Yes, याद आ गया. So there is therefore पहला ये कि phenylalanine के पाथवे को ही ब्लॉक करता है, does not let it hydroxylate. So there is a build up of phenylalanine and therefore it becomes toxic, and therefore we see
PKU, which blocks the transport of tyrosine and of course another substance which is tryptophan into the brain. तो ये बिल्डअप पहला ब्लॉक होता है in the pathway transportation का of phenylalanine into the cell. दूसरा स्टेप है at the level of enzymatic synthesis where tyrosine hydroxylation, अब टायरोसिन अगर बन गया तो टायरोसिन की हाइड्रोक्सिलेशन होनी जरूरी है. चार्ट देखें जो मैंने आपको दिया था, टायरोसिन की हाइड्रोक्सिलेशन होगी तो ना वो डोपा बनेगा, राइट. तो टायरोसिन की हाइड्रोक्सिलेशन की प्रोसेस को रोकने के लिए एक सब्सटेंस है विच इज नोन एज अल्फा मेथाइल पैराटायरोसिन. अल्फा मेथाइल पैराटायरोसिन अल्फा पोजीशन पे मेथाइलेट कर देना टायरोसिन को, so which means this competes, alpha methyl paratyrosine blocks the action of tyrosine hydroxylate. तो टायरोसिन को हाइड्रोक्सिलेशन होने नहीं देता, तो वो बिल्डअप होती रहती है टायरोसिन, लेकिन वो आगे डोपा नहीं बन सकती, आगे डोपामाइन नहीं बन सकती. So at the enzymatic, the first step that we can block within the neurotransmitter system is hydroxylation action, which is blocked by alpha methyl paratyrosine, which leads to a decrease in dopamine, norepinephrine and epinephrine. तीनों न्यूरोट्रांसमीटर्स बिल्कुल कम हो जाते हैं. तो क्यों कम होते हैं? क्योंकि अगर टायरोसिन होगी, अगर टायरोसिन बनेगी तो फिर आगे ये तीनों बनेंगे ना, है ना. तो फिर टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेट नहीं हो सकती, ना आगे डोपा बन सकता है, ना आगे बाकी सब्सटेंसेस बन सकते हैं. तो अल्फा मेथिल पायरोटायरोसिन is a very effective reducer of catecholamines. कैटेकोलामीन्स को बहुत ज्यादा अगर ब्लॉक करना हो, तीनों कैटेकोलामीन्स को, डोपामिन, नोरेपिनेफ्रिन एंड एपिनेफ्रिन को, तो अल्फा मेथिल पायरोटायरोसिन 2 और वो बिल्कुल तीनों की लेवल्स गो वेरी मच बिलो द नॉर्मल. तो बनने ना दे तो आपका डोपामिन खत्म होता जाएगा, राइट. सो व्हाट डू वी डू? We have to then look for ways in which this can be altered. So second step जो था वो alpha methyl paratyrosine blocking tyrosine hydroxylation, conversion of dopa into dopamine through dopa decarboxylase, है ना, कार्बोक्सिल ग्रुप निकालने वाला. लेकिन इसमें एक सब्सटेंस है अगेन अल्फा मेथाइल डोपा जो कि डिकार्बोक्सिलेशन की एक्शन को रोक देता. तो फिर डोपा भी बनने के बाद भी डोपामिन को हम रोक सकते हैं. तो पहला स्टेप टायरोसिन को रोक सकते हैं, दूसरा स्टेप डोपा को रोक लिया अब हमने. अब डोपा आगे डोपामिन नहीं बन रहा, जब डोपामिन नहीं बनेगा तो आगे नोरेपिनेफ्रिन भी नहीं बनेगा और एपिनेफ्रिन भी नहीं बनेगा. तो द स्टेप दैट वी कैन ब्लॉक इट इज बाय अ सब्सटेंस व्हिच इज a false enzyme alpha methyl dopa. अब उसके बाद हम कहाँ पे और इसको डोपामिन के पाथवे को हम छेड़ सकते हैं, मॉड्यूलेट कर सकते हैं फार्माकोलॉजिकली. अगला स्टेप है वेयर वी कैन डिस्ट्रॉय जो स्टोरेज वेसिकल्स है ना, जिसके पर डिपेंड कर रहा था न्यूरोट्रांसमीटर सिस्टम, बिकॉज यू नो हमारे पास अभी स्टोर है, कोई बात नहीं, फिक्र ना करो, ये इस्तेमाल होगा. स्टोरेज वेसिकल को जब अटैक कर देते हैं, जिस तरह फिल्मों में नहीं देखते कि जाके वो एम्यूनिशन डेपो को अटैक कर देते हैं, फिर दुश्मन के पास कोई असला नहीं रहता. अब ये हमारे स्टोरेज वेसिकल्स जो हैं, ये दीस आर द बैकअप एंड दे आर गोइंग टू बी नीडेड. सो इन ऑर्डर टू ऑल्टर द डोपामिनर्जिक पाथवे, रेज़ापिन, और रेज़ापिन की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये मैं थोड़ा सा यहाँ से बताती चलूँ. रेज़ापिन इज नोन एज अ रिवोल्फिया अल्कलॉइड और रिवोल्फिया सर्पेंटीन. याद कहानी जो रखने की है वो ये है कि इसकी जो एक्सट्रैक्शन है वो सब कॉन्टिनेंट में हुई, इसलिए कि सब कॉन्टिनेंट में बहुत साल डॉक्यूमेंटेड है, सदियों रिवोल्फिया सर्पेंटीन और रिवोल्फिया अल्कलॉइड्स वर यूज्ड जड़ी बूटियों से निकाल के मेंटल इलनेस को ट्रीट करने के लिए.
अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ना कि ये वो ट्रीटमेंट था जो हमारी जड़ी बूटियों से निकला था, और इसका जो पहला एल्कलॉइड एक्सट्रैक्ट है वो भला सोचे किसने निकाला। अब ये आपको लिटरेचर में कहीं आपको किताब लिखा हुआ मिलेगा। हमारे एक बहुत मशहूर केमिस्ट थे, वेरी वेल नोन नेम, डॉक्टर सलीमुज़्ज़मा सदीकी। किसी एक किताब में कहीं ये डॉक्यूमेंटेड है, और जाहिर है कि जब हमारे मुसलमान साइंटिस्ट का लिखते हैं, काम करते हैं, तो वो कहीं जाकर गुम जाता है। तो अब कम नजर आता है, लेकिन इट इज डॉक्यूमेंटेड दैट इट वाज हिज कंट्रीब्यूशन ऑफ सेपरेटिंग द अल्कोलॉइड कंपाउंड्स व्हिच बिकेम द ड्रग ऑफ चॉइस, रेजरपीन। और इसको रॉश और बाकी लोगों ने इसको बहुत मार्केट किया, और नेचुरली इट इज जहाँ पर टर्न हुई है साइको एक्टिव ड्रग्स की और यूजिंग ड्रग्स टू ट्रीट साइकोलॉजिकल इलनेसेस, ये वहाँ से शुरू। ओके, so this is rezapine is a major and a long lasting tranquilizer. A major tranquilizer वो tranquilizers हैं जो schizophrenia वगैरह में इस्तेमाल होते हैं। Rezapine when injected, all vesicles are ruptured. जिस तरह बलून में पानी भरने के बाद फटा देते हैं ना, तो उसमें सारा पानी निकल जाता है, बिल्कुल इसी तरह ये रप्चर हो जाते हैं, और रप्चर होने के बाद दे कैन नॉट बी रिपेयर्ड एंड न्यू vesicles have to be manufactured. So therefore, as a consequence, no dopamine is stored, और then जितनी बनेगी उस स्टोर नहीं हो सकेगी, कम कम बनेगी और उसके बाद इस्तेमाल हो जाएगी। तो लेवल्स ऑफ डोपामिन गो डाउन। पहले फ्लड आता है, इस्तेमाल हो जाता है, उसके बाद जो बच गए हैं उसमें जो बनेगा रोजाना के वही इस्तेमाल होगा। दूसरा है टेट्राबेनजीन। टेट्राबेनजीन ब्लॉक्स रीअपटेक इनटू द वेसिकल बट इरिवर्सिबल नहीं है। रेज़ापीन का इफेक्ट इरिवर्सिबल है, कैन नॉट बी चेंज। टेट्राबेनजीन का इफेक्ट जो एक और सब्सटेंस है विच इज अ ट्रैंक्विलाइजर, उसका इफेक्ट रिवर्सिबल है, वो निकलवा देता है बीच में से, लेकिन स्टोरेज वेसिकल वहीं के वहीं है, फिर वो वापस एब्सॉर्ब हो जाते हैं, मॉलिक्यूल्स वापस आ जाते हैं। ठीक है, तो एक रप्चर कर देता है तो लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट, दूसरा शॉर्ट इफेक्ट है क्योंकि वो निकलवा के स्पिल आउट करवाता है, लेकिन वो वहीं पर स्टोरेज वेसिकल मौजूद है, उसमें वापस आ जाएंगे जितने मॉलिक्यूल्स हैं, स्टोर हो सकते हैं। अगला स्टेप विच इज स्टेप नंबर 4, हम कहाँ पे इसको ऑल्टर कर सकते हैं? एट द पॉइंट ऑफ रिलीज फ्रॉम द प्री सिनेप्टिक एरिया। दिस इज वेयर वी कैन ऑल्सो ब्लॉक द न्यूरोट्रांसमीटर। दो तरह से हम कर सकते हैं। वन, एन एगोनिस्ट सच एज एम्फेटामीन। एम्फेटामीन का नाम याद रखेंगे, बार बार आएगा। एम्फेटामीन मार्केट में रॉकेट, स्पीड के नाम से बिकता है, कोकेन नहीं, रॉकेट और स्पीड के नाम से। तो एम्फेटामीन जो है वो रिलीज करवाता है डोपामिन के मॉलिक्यूल को, और दूसरा स्टेप रीअपटेक। रीअपटेक मीन मॉलिक्यूल जाया होने के बजाय वो सारे वापस आ जाते हैं कि अच्छा अब कर आए अपना काम, दूसरी साइड को टच कर आए हैं, वहाँ कुछ मॉलिक्यूल एब्सॉर्ब हो गए। अगर हजारों मॉलिक्यूल थे तो जो 100 मॉलिक्यूल वहाँ एब्सॉर्ब हो गए, बाकी तो वापस आएंगे ना। तो उन मॉलिक्यूल्स को फिर वो रीअपटेक करते हैं और फिर वेसिकल में डाल के फिर रख लेते हैं। लेकिन एम्फेटामीन उनको रीअपटेक नहीं होने देता। यहाँ बैठा हुआ एम्फेटामीन का मॉलिक्यूल, वो कहता है वापस जाओ, वापस जाओ, फिर जाके उधर पोस्ट सिनेप्टिक को छेड़ो, फिर जाके वहां पर पहुंचो, अपना काम करो। तो वो दो काम करता है एम्फेटामीन, एक रिलीज कराता है मॉलिक्यूल डोपामिन के को, एंड देन not just releasing the dopamine molecule, but it also blocks the reuptake. So there is a longer lasting effect, a long lasting effect of the dopamine that has been released. Therefore, there is a prolonged action that can be seen as a consequence of amphetamine releasing and blocking reuptake of dopamine in the presynaptic area. And there are other substances of which some of you may be familiar, you have read about it. Cocaine. Cocaine is a drug that you see, फिल्मों में आप देखते हैं और इन हॉलीवुड की फिल्मों में भी, और इट्स अ वेरी वेरी नेस्टी ड्रग, वेरी नेस्टी। लेकिन वो उसका जो
कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो बच्चों को नहीं पता चलते। ये वो जो कागज उस पर डाल के शीशे की उस पर फिर वो स्निफ करते हैं right into the nostril और immediate effect. Of course नाक का डैमेज होगा सो होगा, साथ ब्रेन की भी हेमरेजिंग होती तो होती है, उसकी भी इफेक्ट होता है। लेकिन दिस इज अ हाईली addictive substance. Cocaine. What does it do? What does amphetamine do? What is the action of dopamine? Dopamine is a stimulant. तो एम्फेटामीन से भी लगता है कि मैं अब दुनिया, इस वक्त मैं ना सोऊंगा ना मैं दुनिया में पहाड़ी पे चढ़ जाऊंगा, मैं आसमान में उड़ जाऊंगा और मैं बड़ा कुछ कर सकता हूँ, करती हूँ। आई कैन डू एवरीथिंग, आई डोंट नीड टू स्लीप एंड आई एम नॉट इवन हंग्री। तो दे आर लाइक द बजिंग फ्लाइज, जल्दी 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 सारे काम करें। और ये हाई जो है, हाई मीन्स द यूफोरिया स्टेट दैट दे गेट फ्रॉम एम्फेटामीन, ऑफ कोर्स, and cocaine is not very long lasting. So you need to take in more and more and more to get to that position and to get to that state of high and euphoria. So dangerous drugs, but they are being used on the street. Be careful. So cocaine also blocks the reuptake of dopamine, and so do substances which are used for as antidepressant, tricyclics. Antidepressant also block the reuptake of dopamine as well as norepinephrine. So, amphetamine, cocaine, tricyclics, acting on the release and reuptake. Amphetamine does two things. Cocaine and tricyclics block only the reuptake. Then we come to step number 5, which is what happens, the deamination process. Cross भी कर गया, आ भी गया, पोस्ट रिसेप्टर साइट पे हमारे पास पहुंच भी गया, तो पोस्ट रिसेप्टर साइट पे क्या होगा? वहां पर भी दो तरीके से हो सकता है। एक, इस साइट को ब्लॉक कर दे, आगे न्यूरोट्रांसमीटर जा ही नहीं सकता, दरवाजे बंद है, गेट नहीं खुलता, तो न्यूरोट्रांसमीटर वापस आ जाता है, मॉलिक्यूल टकरे मार, ये ब्लॉकिंग इसको कहते हैं। तो देयर आर एंटागोनिस्ट व्हिच विल ब्लॉक द एक्शन ऑफ the neurotransmitter, and there are actions in which some will open up so more neurotransmitter gets through, or they mimic the action. जितनी दफा उसको न्यूरोट्रांसमीटर टच करेगा वो जाके पोस्ट रिसेप्टर साइट को ये अंदाजा देगा या ये गलत फहमी में डालेगा, बहुत न्यूरोकेमिकल आ रहा है, खोलो खोलो रास्ते खोलो, एक्शन करो। तो पहला है ब्लॉक। ब्लॉक के लिए डोपामिन को रास्ता रोकना कभी जरूरत भी होती है, किन में जरूरत पड़ती है? जब डोपामिन बहुत बढ़ जाती है, इट बिकम्स एन इलनेस लाइक शिज़ोफ्रेनिया। तो जब बहुत बढ़ जाती है, फिर जब दवाई दी जाती है जो कि आगे इसके एक्शन को रोके ताकि डोपामिन अपना काम ना कर सके, कम से कम से कम से कम होती जाए। एंड व्हेन वी गिव सब्सटेंस लाइक हेलोपेरिडोल, लार्जेक्टिल, ये नोन सब्सटेंसेस है फॉर शिज़ोफ्रेनिया, ये ब्लॉक करती हैं डोपामिन की साइट, आगे जाने नहीं देती डोपामिन के मॉलिक्यूल। तो दे रिड्यूस द एक्शन ऑफ डोपामिन। लेकिन दूसरी तरफ कभी जरूरत भी पड़ती है, पार्किंसंस में हमें जरूरत पड़ती है ना कि डोपामिन के लेवल को बढ़ाओ, राइट? तो जब डोपामिन के लेवल को बढ़ाना होता है और जो डोपामिन की अमाउंट्स को इंक्रीज करना होता है, अवेलेबल अमाउंट्स को विद इन द ब्रेन, देन वी यूज सब्सटेंसेस लाइक एपोमॉर्फिन। एपोमॉर्फिन इज अ पोस्ट रिसेप्टर स्टिमुलेंट। तो पोस्ट रिसेप्टर यहाँ आके बैठ के इट मिमिक्स एक्शन। तो ये पोस्ट रिसेप्टर साइट समझती है डोपामिन का मॉलिक्यूल आया, एक्शन एक्शन एक्शन, एक्साइटेशन, राइट? So there are two ways in which at the post receptor site we have action. One is blocking and other is stimulation of this through the mimicking by the substances such as apomorphine and blocking by haloperidol. Then we have this molecule floating around in this cleft और deamination की process है।
डीएमिनेशन के लिए मोनोएमीन ऑक्सीडेज जो ऑक्सीडाइज कर देता है और निकाल देता है, याद है, बताया था। नाउ within the cell and within the synaptic cleft area we can increase the amount of dopamine whatever is released, उसको हम डीएमिनेट ना होने दें, उसको हम इनएक्टिवेट ना होने दें, तो फिर क्या होगा, उसका अमाउंट अवेलेबल ज्यादा होगा। तो substances which are antidepressants such as monoamine oxidase inhibitor, तो इनहिबिटर को इनहिबिट करने वाला डोपामिन की अमाउंट को बढ़ा देगा, है ना, तो वो हम दे सकते हैं। और ये एंटी डिप्रेसेंट्स सब मोनोमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स में पार्जोलिन एक सब्सटेंस है, एक दवाई है जो कि फिर देन अवेलेबल डोपामिन की लेवल्स बढ़ा देती है, क्योंकि एक्सक्रीट ब्रोकन डाउन मेटाबोलाइट ये नहीं होता फिर डोपामिन, उसके मॉलिक्यूल्स को वो रोक देते हैं। इनहिबिटिंग द इनहिबिटिंग मॉलिक्यूल, इनहिबिटिंग द इनएक्टिवेटिंग मॉलिक्यूल, then increasing amounts of dopamine that is available. So it blocks the deaminating process. In the same manner, we can also block the action of COMT, and so we have more dopamine and norepinephrine and so on available. तो ये तो हुआ हमारे पास डोपामिन की ये कहानी कि कहाँ कहाँ उन स्टेप्स में किस किस जगह पे फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस कैन एक्ट ऑन डोपामिन। अब आइए dopamine and what are the behaviors on which dopamine can act and what are the behaviors which can be changed by the levels change in dopamine, increases, decreases in dopamine, alteration in dopamine in one system or the other, तीन सिस्टम में से किसी में भी ऑल्टरेशन हो, क्या नजर आता है। पहला बिहेवियर जिसकी हम बात करेंगे वो है मोटर एक्टिविटी, एंड वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट दिस अर्लियर एज वेल कि कहीं ना कहीं जब भी हमने न्यूरो एनाटॉमिकल लोकेशन की भी बात की थी कि डोपामिन और सब्सटेंशिया नाइग्रा आर इन्वॉल्व इन मोटर एक्टिविटीज। बेसल गैंग्लिया के साथ साथ इसमें हमने बात की थी मोटर कोऑर्डिनेशन, बैलेंस, एटसेट्रा एटसेट्रा। व्हाट इज द एविडेंस? The evidence that we have already referred to is that decrease in dopamine in the substantia nigra, decreases in substantia nigra dopamine leads to Parkinson's and Parkinson's-like symptoms. Pathologists who have analyzed the brains of or after autopsy of Parkinson's patients have reported that the substantia nigra of these patients is pale. Now, why is it such an important finding? Because if you remember, I told you that the name Niger, substantia nigra is a dark pigmented area, जहाँ के न्यूरॉन्स का रंग डार्क रेड ऑलमोस्ट ब्लैक। इसलिए अगर पेल है इसका मतलब टोटली डिजेनरेट हो चुके हैं, यहाँ मौजूद नहीं है डोपामिन। So instead of the dark pigmentation, you see this pale substantia nigra, which is further evidence of the involvement of substantia nigra in motor behaviors. Then logically proceed करें ना, अगर उसकी वजह से पार्किंसन के सिम्टम्स थे और डोपामिन कम थी, तो अगर हम डोपामिन को बढ़ाते तो क्या होगा? लॉजिक क्या बताती है? लॉजिक ये बताती है अगर हम इसको बढ़ाते थेरेपी के जरिए, एल-डोपा के जरिए एल-डोपा थेरेपी देते तो हमें पार्किंसंस के सिम्टम कुछ कम नजर आने चाहिए थे, है ना? Which is right. Good. This is exactly what happens. That if you give L-dopa, तो पार्किंसंस के जो ट्रेमर वगैरह हैं और रिजिडिटी है वो कुछ कम हो जाती है। And therefore, increase in dopamine in substantia nigra alleviates the symptoms of Parkinson's. फिर अगला पीस ऑफ एविडेंस क्या है? आपको याद होगा मैंने आपको एक शुरू में पढ़ाया था कि रेट्रोग्रेड ट्रांसफर से हम इंजेक्ट कर सकते हैं एक सब्सटेंस विच इज नोन एज, विच इज वेरी स्पेसिफिक, 6 हाइड्रोक्सी डोपामीन। डोपामीन की तरह मिलता जुलता मॉलिक्यूल है, लेकिन 6th पोजीशन पे वो हाइड्रोक्सिलेटेड है। मॉलिक्यूल की 6th पोजीशन पे वो हाइड्रोक्सिलेटेड है,
which is why it is called 6-hydroxydopamine. अब ये हम इंजेक्ट करें into the brain in the substantia nigra, it directly enters dopamine system और उन न्यूरॉन्स को ये डीजेनरेट करता जाता है, मारता जाता है, खत्म करता जाता है. टॉक्सिक एजेंट है, पॉइजन है, लेकिन इतना खूबसूरत पॉइजन है कि वो डोपामिन मॉलिक्यूल को नहीं पता चलता, वो उसको एब्सॉर्ब कर लेता है कि ये दोस्त है, बिकॉज डोपामिन मॉलिक्यूल है. लेकिन हाइड्रोक्सिल ग्रुप होने की वजह से वो इट्स पॉइजन एंड इट एंटर्स एंड इट किल्स ऑफ neurons in the substantia nigra. And therefore, what do we see? What do we see? We see a degeneration of the substantia nigral dopaminergic neurons. Behaviorally, what do we see? We see Parkinson's-like symptoms. If dopamine is increased exogenously, if we administer from outside, then it leads, अगर नॉर्मल ब्रेन है, नॉर्मल एनिमल है, लेकिन उसको हम डोपामिन सब्सटेंस एल्डोपा इंजेक्ट करते हैं. और एल्डोपा इंजेक्ट करने से क्या होता है? स्टीरियोटाइपिक मोटर बिहेवियर. स्टीरियोटाइपिक का मतलब रेपिटेटिव मोटर एक्ट्स. कोई चीज बार बार अगर आप करते हैं ना, या बार बार करते हैं, ये रेपिटेटिव मोटर एक्ट है. आई हैव सीन इन रैट्स, वो उठते हैं, उनके 2-3 चीजें बहुत सारी वो कर सकते हैं रैट्स, रेपिटेटिव एक्शन. एक तो वो गोल 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 भागे जा रहे, रुक नहीं सकते. दूसरा है कि वो बार बार ग्रूमिंग करते हैं अपने मुंह को. आपने देखा ना, वो गुलेरी भी करती है, बार बार अपने हाथों से मुंह को साफ करती है. रोडेंट्स में ये होता है ग्रूमिंग बिहेवियर. अच्छा, अब वो उसको जरूरत नहीं है, लेकिन वो बार 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 बार. और ह्यूमन में भी आप देखते हैं, बैक एंड फोर्थ बैक एंड फोर्थ बैक एंड फोर्थ बैक एंड फोर्थ चल रहे. ये जब आपको ये चीजें देखें कि स्टीरियोटाइपिक मीन्स वही पैटर्न है और रिपीटेड है, ये एक्शन डोपामीन की इंक्रीज होने से होता है. तो एल्डोपा के साथ यू कैन सी दैट. एंड पार्किंसंस पेशेंट्स ऑन हाई डोजेस ऑफ एल्डोपा शो दिस स्टीरियोटाइपिक. एल्डोपा की अगर ट्रीटमेंट हो रही थी, लेकिन एल्डोपा अगर ज्यादा दी जाए तो वो स्टार्ट शोइंग स्टीरियोटाइपिक बिहेवियर. फर्दरमोर, एपोमॉर्फिन एंड एम्फेटामिन at high enough doses also lead to stereotypic behavior. एपोमॉर्फिन एंड एम्फेटामिन दोनों, जिनको स्ट्रीट ड्रग्स हैं, खासतौर पे एम्फेटामिन, तो वो रेपिटेटिव बिहेवियर्स, बार बार वही चीज करना. कई जो एम्फेटामिन एडिक्ट्स है ना, वो तो अपनी फिर स्किन को चुनते रहते हैं बार बार. तो वो जो रेपिटेटिव बिहेवियर है, ये एम्फेटामिन एपोमॉर्फिन के बाद भी नजर आता है. सो अगेन ड्यू टू डोपामिन. एंड हाउ कैन वी बी श्योर दैट दिस इज ड्यू टू डोपामिन? थिंक अबाउट इट. आई गिव यू several possibilities. एक पॉसिबिलिटी भीख का भी नाम दे. सोच लिया क्या? अगर आप पिछले नोट्स में जाके देखें ना, तो आपको पता चलेगा that you can block the action, है ना, of dopamine. तो ये रेपिटेटिव एक्शन हो रही है, और टू बी श्योर कि ये रेपिटेटिव एम्फेटामिन की एक्शन डोपामिन की वजह से, मैं हेलोपेरिडोल दे के डोपामिन को ब्लॉक कर देती हूँ. एक इंजेक्शन हेलोपेरिडोल का, डोपामिन की लेवल्स डाउन जाती हैं, और साथ साथ वो स्टीरियोटाइपिक बिहेवियर कम होता जाता है ना. तो लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ ड्रग एक्शन वी फिगर आउट. अच्छा, अगर ये चीज है, अगर ये सब्सटेंस देंगे, और अगर ये हुआ हरकत, ये मूवमेंट हुई, हेलोपेरिडोल के बावजूद स्टीरियोटाइपी रही, तो फिर तो डोपामिन नहीं है. लेकिन हेलोपेरिडोल जो ब्लॉक करती है डोपामिन को, उसके बाद उसकी मोटर बिहेवियर कम होना शुरू हो, रेपिटेटिव एक्शन कम होना शुरू हो, then we can say it was due to dopamine. तो इसी तरह से एक और सब्सटेंस है which is chlorpromazine. एक दवाई है which is used for schizophrenic.
ये शुरू में बहुत दी जाती थी, अब इसके और ऑल्टरनेटिव्स आ गए हैं, लेकिन क्लोरोप्रोमेजीन also blocks dopaminergic pathways, thereby reducing the amounts of dopamine that is available in the system. तो दो हमने ब्लॉकर डाले तो आप एपोमॉर्फिन और एम्फेटामिन की एक्शन भी कम कर देते हैं, इसी के साथ शिजोफ्रेनिया की टॉलरेट भी कम हो जाती है। यूनिलैटरल लीजन्स ऑफ 6-हाइड्रोक्सीडोपामाइन, आपको यूनिलैटरल याद है? यूनिलैटरल क्या था? यूनिलैटरल का बायलैटरल था दोनों तरफ, यूनिलैटरल है एक तरफ। अगर हम 6-हाइड्रोक्सीडोपामाइन दें जो कि बड़ा स्पेसिफिकली लीजन करती है सब्सटेंशिया नाइग्रा को, हम वहाँ इंजेक्ट करते हैं, डैमेज करते हैं, एक तरफ डैमेज हो गया एक तरफ डैमेज नहीं हुआ, बायलैटरल है ना, सारी ब्रेन बायलैटरल है, तो एक तरफ सब्सटेंशिया नाइग्रा इंटैक्ट है, एक तरफ डैमेज हो गया, फिर एनिमल का पोस्चर टेढ़ा हो जाएगा, इम्बैलेंस है ना, डोपामिनर्जिक सिस्टम में इम्बैलेंस है, तो ब्रेन में भी इम्बैलेंस है, पोस्चर में भी इम्बैलेंस है वगैरह। अच्छा, अब ये इम्बैलेंस, मोटर इम्बैलेंस मौजूद है। अगर मैंने इस मोटर इम्बैलेंस को ज्यादा करना हो तो मैं क्या करूंगी? इधर के तो डोपामिन के न्यूरॉन्स मर गए, खत्म हो गए, डिजेनरेट हो गए, तो आई जस्ट हैव डोपामिन न्यूरॉन्स इंटैक्ट हियर ऑन द लेफ्ट साइड, so I give amphetamine. What should I have? See, I should see amphetamine rises the level of dopamine on this side, and therefore the body of the animal will turn, and to a point, if I keep increasing the levels of amphetamine, the animal will keep turning. A symmetry of posture. So that is again motor balance, motor activity, and motor behavior, which is then a consequence of dopamine imbalance. इसका एक और तरीका है जो मैंने किया हुआ, ये कि ब्रेन, रैट की ब्रेन में बजाय लीजन करने के मैं एक तरफ स्टिमुलेट करती हूँ, दोनों इंटैक्ट हैं। अब यूनिलैटरल स्टिमुलेशन, बजाय लीजन करने के स्टिमुलेट करने से क्या होगा? वो न्यूरॉन्स फायर करेंगे, राइट? तो फिर आई कैन क्रिएट दिस सिचुएशन दैट द एनिमल टर्न्स इम्बैलेंस. It is always from the direction which is higher to the direction which is lower, the postural imbalance. So dopamine again is responsible for the motor coordination, motor balance and motor activity. दूसरा behavior जिसमें dopamine involved है वो है hyperactivity, because activity के साथ related है, and that is we see hyperactive बच्चों का नाम सुना हुआ है, attention deficit hyperactivity disorder, ADHD. Hyperactive बच्चे वो हैं जो like the amphetamine addict will not be able to sit, continuously jumping around, moving around, एक जगह छेड़ दूसरी जगह छेड़ continuously. ये वो बच्चे हैं जब तक सोते नहीं और कम सोते हैं, लेकिन they have certainly a lot of activity that बैठाना उनको मुश्किल होता है. क्लासरूम में भी टीचर कहती है ये क्लास में नहीं बैठता. उनको एम्फेटामिन इज, राइटैलिन इज अ ड्रग ऑफ ट्रीटमेंट. राइटैलिन क्या है? एम्फेटामिन इन अनदर फॉर्म, वन आइसोमर ऑफ एम्फेटामिन इज गिवन टू ट्रीट दीज चिल्ड्रन. क्योंकि एम्फेटामिन जब डाली जाती है तो ब्रेन की अपनी डोपामिन लेवल्स कम होती शुरू हो जाती है, एंड दीज बिहेवियर्स आर कंट्रोलेबल. So hyperactivity is also due to increased dopamine, and effective method of treatment is giving Ritalin or amphetamine. इसी तरह से amphetamine is also the choice of treatment for narcolepsy. Narcolepsy is a disorder which is a sleep disorder. तो उसको रोकने के लिए, अवेक रखने के लिए dopamine and amphetamine are given as treatment. Schizophrenia में dopamine is involved in a big way, and we will talk about this in the next class. But remember that dopamine is a major neurotransmitter. Dopamine is involved in a complex series of behaviors, from the simplest, which is motor actions, to a little more complex such as hyperactivity, to even more complex such as addictions, to even more complex which is psychopathology
such as schizophrenia. बात याद रखने की है कि आपने, if you want to understand, don't have to remember these heavy names. वो चार्ट अपने सामने बना ले, वो डायग्राम बना ले, वो प्री सिनेप्टिक, पोस्ट सिनेप्टिक, सिनेप्टिक लेफ्ट वाला, that will help you understand this particular process. अगली क्लास में I will go into the synaptic pathways and the projections of these pathways, and we will go into the details of other neurotransmitters as well. Thank you very much.